آپ ایک فیکٹری میں گئی جہاں 6 روپے دہاڑی پر آپ کو رکھا گیا اور انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 6 روپے دیکھے تھے اور اس فیکٹری میں ان کا کیا کام تھا، ان سے جانتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، میں یہ پہلی بار آپ کے چینل پہ بتا رہی ہوں کہ میں اپنے گھر سے نکلی تو میری جاب تھی صبح 4 بجے سٹارٹ ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ آ گئی تو میں نے کہا میرے پاؤں کو ٹھنڈ کیوں لگی ہے، تو میں نے دیکھا میرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، گھر بھی نہیں رہا، کرائے کی چھت پہ آ گئے، پارک میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لوگ دیکھتے تھے۔ اس کے بعد میں نے سویپر کی جاب کی تو لوگوں کے واش روم صاف کیے۔ میرے والد صاحب جب جیل میں گئے، زندگی میں پہلی بار انہوں نے جیل 15 دن میرے بک کس قد میں جیل کے اندر رہے۔ جو ان کے خاوند تھے ان کا گھر بھی لے لیا، ان کے زیورات بھی لے لیے دھوکے سے تو انہوں نے ان پر یقین کیا، جو کہ ان کا بنتا بھی تھا، یقین کر کے اپنا گھر بھی دے دیا، کاغذات دے دیے، زیورات دے دیے، لیکن اس نے ظاہر ہے کہ ان کو دھوکہ دیا اور نہ صرف ان کا گھر، نہ صرف ان کے زیورات بلکہ اور بہت ساری عورتوں کے زیورات اور گھر بیچ کر ان کے ابو پر الزامات لگا دیے۔ پھر آپ کو خبر پہنچی کہ اس کا انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن میرا دل آج بھی نہیں مانتا۔ وہ اس لیے کہ ایسے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ کیا پھر میرا دوبارہ نکاح ہوگا؟ میں BCom پارٹ 2 میں تھی کہ ہم نے فزیکل ریلیشن قائم ہی نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ اچانک سے شادی کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد ان کو پیرالائز ہیمریج میں اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی، اپنی 6 ماہ بچی کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے شوہر کو بچا لیجئے، میں دوبارہ میری قسمت میں دوبارہ بیوہ ہونا مت دیکھیے۔ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ آپ کو صبر، اور مجھ سے آپ میری بہن ہیں، بڑی بہن ہیں۔ میں آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہو گئی، مجھے آرتھرائٹس ڈائگنوز ہوا۔ دیکھیں میں نے اپنی ٹانگ فوراً چینج کی تو درد زیادہ شروع ہو گئی، تو میں ان کو سروائیو نہیں ان کے ساتھ کر پا رہی تھی۔ میں نے ان کو 4 سال منایا۔ اچھا جس دن میں بارات لے کے گئی نا، میں نے کہا میں نے آپ کی بارات کے ساتھ نہیں جانا، جب انہوں نے کہا نا کہ نکاح کا ٹائم آ گیا ہے، میں نے کہا اللہ کرے یہ نہ کر دے۔ اس نے نا میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کے سامنے اور پھر اس نے اس کو کہا کہ عظمیٰ نے بہت بڑی قربانی دے دی۔ میں تمام دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں کہ خدارا یہ لوگوں کے حق میں آواز بلند کرتی ہیں، میں ان کی آواز بن رہا ہوں، ان کا علاج کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ ایک آواز نہیں بلکہ پاکستان کی آواز ہے۔ ان کے عزم و استقلال اور جذبے میں ہے جوانی۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ عظمیٰ گیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ جس طریقے سے آپ پاکستانیوں کی آواز بنتی ہیں، میں آپ کو مبارکباد ہی پیش کر سکتا ہوں۔ آپ گلی گلی، گھر گھر، ڈور ٹو ڈور، ہاؤس ٹو ہاؤس جا کر، بلکہ لاہور سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، پاکستان پورا گھوم چکی ہیں آپ اور ہر طبقے کی آواز بن چکی ہیں۔ آپ بس جاتی ہیں اور بلا خوف و خطر آپ ہر اسٹوری کور کرتی ہیں۔ آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ عظمیٰ جی، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بنتی ہیں، لیکن آپ کی اسٹوری کیا ہے؟ آپ کی ایکچوئل اسٹوری کیا ہے؟ لوگوں نے سن رکھی ہے مگر ایسے حقائق جو ابھی تک آپ اسکرین پر لانا نہیں چاہتی، لوگ نہیں جانتے۔ آج آپ ایسے حقائق سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی آگاہ کریں، اور میں خود بہت انٹرسٹ لے کر سنوں گا کہ بھائی آخر عظمیٰ جو ہے وہ اسٹرانگ عظمیٰ کیسے بنی، ذرا بتلائیے۔ جی السلام علیکم۔ میں ان کے پلیٹ فارم سے تو آج یعنی کہ یوں ہی اپنی وہ جو ساری باتیں انہوں نے کہا حقیقت سے پردہ اٹھا دیں۔ میرے حال میں میری زندگی ایک کھلی حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھی نا واقف نہیں ہے، لیکن عظمیٰ سے جو اسٹرانگ عظمیٰ کا سفر ہے یہ بڑا ہی مشکل تھا، اور عورت کیا ہوتی ہے وہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ عورت کے صحیح معنی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ میں بہت با پردہ خاتون ہوں اور بڑا میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والی ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے نا وہ بڑی نازک اور معصوم، اس کو یعنی کہ بنایا بھی گیا ہے اور وہ ہے بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن
عورت جتنا مضبوط کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ دیکھیں ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے تو پھر اس سے زیادہ مضبوط تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہی مرد جس کو عورت پیدا کرتی ہے اس کی اوقات اتنی سی کہ وہ پھر اکڑ کے چلتا ہے کہ نہیں, میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عورت کیا ہے, وہ بغیر پیسوں کے آپ کی باورچی ہے, ٹھیک ہے, بغیر پیسوں کے آپ کی وہ سویپر ہے, بغیر پیسوں کے وہ آپ کا جو ہے وہ لانڈری کا کام کرتی ہے, بغیر پیسوں کے وہ آپ کے بچے سنبھالتی ہے, پالتی, بغیر لالچ کے وہ آپ کو بے پناہ محبت دیتی ہے. واہ 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 واہ. تو آپ سے وہ محبت کرتی ہے اور آپ کے ساتھ سب کو سنبھالنے کے بعد پھر وہ آپ کو ٹائم دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو عورت اس میں ذرا پیچھے چلیں گے, ظاہر ہے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے, ناظرین سے بھی اس وقت مخاطب ہے. ذرا پیچھے چلیں گے کہ جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور آپ میں کچھ کر دکھانے کا حوصلہ تھا, ہمت تھی, جرت تھی, طاقت بھی تھی, ظاہر ہے کہ جبھی تو آپ معاشرے کو فیس کر رہی تھی, تو آپ ایک فیکٹری میں گئی جہاں 6 روپے دہاڑی پر آپ کو رکھا گیا. میں تو بہت ماضی کی پوٹلی کو کھولنے والا ہوں بھائی. 6 روپے دہاڑی پر ناظرین محترم اس خاتون کو رکھا گیا اور انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 6 روپے دیکھے تھے, اور اس فیکٹری میں ان کا کیا کام تھا اور وہ کس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کو چلا رہی تھی, رن کر رہی تھی. ان سے جانتے ہیں, وہاں سے ہم کو بتلائیے. میں جب گاؤں سے لاہور میں آتی ہوں تو کوئی کام نہیں ہے, اور لاہور کی دنیا ایک ڈیفرنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے اتنی لائٹیں میری آنکھوں میں جب پڑی تو میرا بچپن وہیں ان لائٹوں کے اندر ہی گم ہو گیا. ٹین ایج کی میں بچی تھی اور ٹین ایج میری جو ہے وہ چھین لی ساری. اتنی لائٹوں کی مجھے عادت نہیں تھی, کیونکہ گاؤں میں فوراً ہی اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب کے فوراً بعد اندھیرے میں رکھا بھی جاتا ہے نا, تو اندھیرے میں رکھا بھی جاتا ہے. اور لاہور کی اتنی لائٹوں نے پکڑ کے ہلا کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ڈر بھی گئے ہم. لیکن پھر کیا کرتے کہ میرے والد تھے اور میں سب سے بڑی اولاد ہوں ان کی, اور وہ بڑے معصوم اور فرشتہ صفت ایک انسان ہے. تو جب وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے کے لیے, گاؤں میں تو بڑے محنتی تھے, گاؤں کے لوگ محنتی ہوتے ہی بڑے ہیں, وہ کسی بھی مشکل کام سے نہیں گھبراتے. لیکن میرے والد صاحب کو جو نوکری ملی تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی. وہ ایک جوتے بنتے تھے پلاسٹک کے, اور ان کے آگے وہ ایک بوائلر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ سارا دن جوتے جو ہیں وہ اندر ڈالنے پڑتے تھے, ان کو پلاسٹک وہ لا کے, تو بڑی وہاں پہ گرمی ہوتی تھی. تو میرے ابو کی ساری بازو بھی جل گئی تھیں اور بڑا ان کو مشکل سے وہ سہنا پڑا تھا. اور وہ 10 بندوں کا کام تھا جو انہوں نے تقریباً گھنٹے کے اندر اندر اکیلے نے کر دیا. تو وہ فیکٹری والے بڑا پریشان ہو گئے کہ یہ کون انسان ہے. پوچھا بھی گیا کہ آپ نے اتنا کام کیوں کیا, تو ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا. پھر ان کی معصومیت کا اس طرح فائدہ اٹھایا گیا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کام 5 بندوں کا ہے, 10 بندوں کا. تو سارے بندوں کو فارغ کر کے تو میرے والد صاحب کو اکیلے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا اور ان سے 10 بندوں کا کام لیا جاتا تھا. تو مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میرا بھی کوئی کام لگ جائے. تو مجھے ایک فیکٹری کے اندر لگایا گیا جہاں پہ میں دھاگے کاٹتی تھی گارمنٹس کے, کلیپنگ اس کو بولتے ہیں. تو وہ کلیپنگ کرتے تھے ہم. عمر کیا تھی آپ کی؟ میں اس ٹائم تقریباً 16 سال کی تھی. اچھا, 15-16 کے درمیان تھی میں. بالکل صحیح. اور آپ قصور سے لاہور آ چکی تھی؟ جی, میری انگلیوں پہ شاید اگر آپ دیکھ سکے تو یہ وہی کٹ کے نشان جو وہ کاٹتے ہوئے لگ گئے, خون بھی نکلا تھا. تو میں نے یقین مانیے صبح 8 سے شام 5 بجے تک صرف 6 روپے کمائے تھے. وہ اس لیے کہ مجھے وہ آتا ہی نہیں تھا کام, اور 8 روپے میرے والدین کرایہ لگا کے اتنی دور سے مجھے لینے آئے. تو وہ مجھے ناگوار گزرا کہ 2 روپے کا نقصان ہو گیا. تو پھر وہ فیکٹری کے جو ٹھیکیدار, کیا سن تھا یہ 1998 کی بات ہے. اچھا, 1998 کی بات جی. تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہم آج کے بعد ویگن پہ نہیں بیٹھیں گے. میں اپنے والد کو ساتھ لے کر, تو صبح ہم 6 بجے گھر سے نکلتے تھے اور 2 گھنٹوں کا رستہ ہم پیدل طے کرتے تھے. 2 گھنٹے میں صبح پیدل چلتی تھی اور 2 شام کو 4 گھنٹے. اور پھر اتنی عادت پڑی کہ مجھے نہیں پھر پتہ چلا کہ 1998 سے لے کر یہ میرے خیال میں 2018 جب میں نے MBA کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. اچھا, جب تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ 20 سال زندگی کے ریت کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل گئے. مجھے نہیں پتہ چلا دن کب ہوا ہے, عید کب آئی ہے, شب برات کب آئی ہے, ٹھیک ہے, سردی کب تھی, کام کو زندگی سمجھ لیا, محنت کو زندگی سمجھ. ایک دن ایسا ہوا, میں یہ پہلی بار آپ کے چینل پہ بتا رہی ہوں کہ میں اپنے گھر سے نکلی تو میری جاب تھی صبح 4 بجے سٹارٹ ہوتی تھی, صبح 4 بجے, اور سردیوں میں آپ کو پتہ 6 بجے تو نماز کی جماعت ہوتی ہے. میں 4 بجے گھر سے نکلی
इतना होश नहीं है। तो मैं अपने घर से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे आ गई। तो मैंने कहा मेरे पाँव को ठंड क्यों लगी है? तो मैंने देखा मैंने जूता ही नहीं पहना हुआ, मेरे पाँव में जूता ही नहीं है। तो पानी में मेरे पाँव गए ना, सर्दी बहुत थी। मैंने कहा मेरा जूता, अब मैं क्या करूँ? मैं वापस घर जाती तो मेरे वालिदैन सोए हुए थे बेचारे, मैं कैसे? फिर मैंने जाके बड़ी मुश्किल से वापस गई, फिर जाकर दरवाज़ा नॉक किया, फिर मैंने अपने पाँव में जूता पहना। मैं बड़ा ही रोई उस दिन। मैंने कहा यार मेरे अंदर ये फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई है कि मेरे पाँव को सर्दी लगी है, गर्मी लगी है, मुझे एहसास नहीं रहा कि मैंने जूता नहीं पहना। तो मैं चले गई और उसके बाद करते 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 फिर वहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा घर बना लिया, कमेटियाँ डाली, मेरे अब्बू ने, मैंने बड़ी मेहनत की। शाम को मैं अपने भाइयों के साथ गर्म अंडे बेचने, वो आवाज़ें लगाते तो मैं कूलर पकड़ के उनके साथ जाती थी। तो हम जाते थे, इस तरह हमने बड़ी मेहनत की। तो उसके बाद हर लड़की जब जवान होती है तो वालिदैन का ही होता फ़ौरन इसकी शादी कर दी। तो 2000 में हमने अपना छोटा सा एक घर 1 मरले का 1.5 मरले का बना लिया। सही है। तो 2005 में मेरी शादी कर दी। ठीक है। ये आपकी पसंद के बरखिलाफ थी? बस सही थी, यानी कि जब मंगनी होगी तो मैंने पसंद कर ही लिया उसको। सही है, सही है, सही है। जब मंगनी हो जाती फिर पता चल जाता कि वो आपका होने वाला दूल्हा होगा जो भी है। तो फिर बंदे को तो ये मंगनी कितना अर्सा रही आप? 1 साल। अच्छा, तो आपको 1 साल में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मुझको धोखा देगा, ये मर्द वैसा मर्द नहीं है जो औरत को प्रोटेक्शन कर सके? क्या फीलिंग हुआ? 1 साल का मसला ये था कि मेरी मुलाकात होती तो मैं कहती ना, या कोई फ़ोन होता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जब मंगनी हो जाती है उसके बाद 1 साल के बाद डेट फिक्स हुई, 15 दिन मेरे फिक्स हो गए। और मुझे आज भी याद है कि वो उनकी फूफो का बेटा और उनकी फूफो आई थी मेरी डेट फिक्स करने। तो डेट फिक्स हो गई, उसके बाद वो चले गए, बारात आई, शादी हो गई, मैं उसके साथ चले गई। तो वो मुझसे बड़े थे 20 साल जी। तो लेकिन वो मुझे पसंद बड़े थे यानी कि होता है ना बंदे को, तो फिर मैं उनसे, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनसे मोहब्बत करूँ जो भी। तो मुझे बड़े पसंद आ गए वो, मैं उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत, इसी चीज़ का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया और वो छोड़ के चले गए। वो कहते नहीं वो सिर्फ चले गए थे, वो छोड़ के नहीं गए थे। अब चले जाना और छोड़ के जाना, मैं डोंट नो क्या डिफरेंस है। चले तो वो फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। मैं आपको बताऊँगा ऑफ द कैमरा, क्योंकि इसमें बड़ा मसला है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, चले जाने में और छोड़ के जाने में फ़र्क होते हैं जी। अब मुझे नहीं पता वो छोड़ के गए चले गए, लेकिन चले गए। नहीं तो वो तो छोड़ गए ना, छोड़ गए। उसके अल्लाह ने एक बेटा दिया, बड़ा प्यारा सा बेटा था, 1 साल 3 माह का था जिस दिन वो जाते हैं, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। और मैंने फिर देखा सोसाइटी चारों तरफ मुंह खोल के बैठी हुई है, जो इंतज़ार कर रही है कि कोई हमें मिले, बलि का बकरा किसी को भी चढ़ा दें। लेकिन मैंने फिर सोसाइटी को कहा कि नहीं, ये सोसाइटी अगर टेढ़ी है तो मुझे इसमें सीधा बन के ही रहना है और अपनी दुनिया एक अलग से बसानी है और एक एग्जाम्पल सेट करके जानी है कि औरत इतनी कमज़ोर नहीं और अपना लोग बना सकते। बिल्कुल सही। तो मैंने, वो आज भी लोग कहते हैं कि तुमने एक खौल चढ़ाया हुआ, तो मैंने अपनी एक 22 साला जो लड़की थी उसको मैंने 50 साल की औरत बना दी, अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया और देखा। तो फिर मैंने कहा जो भी जॉब मिले मुझे, लेकिन मुझे धंधा नहीं करना, धंधे वाली नहीं बनना। वाह 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 वाह, मुझे धंधे वाली नहीं बनना। मेरे सामने तमाम औरतों को जाहिर है कि उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं तो ये कहूँगा स्ट्रॉन्ग उज़मा जी, मैं तो स्ट्रॉन्ग उज़मा कहूँगा भाई आपको। अच्छा, मैं ये चैनल देखता था, मैं कहता भाई स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई, ये क्यों नाम रखा है? लेकिन खुदा की कसम मैं आज आपके सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि आप उज़मा नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग उज़मा हैं। जिन तकालीफ को आपने बर्दाश्त किया, जो आजमाइशों के पहाड़ आप पर तोड़े गए, आपने उनका डटकर मुकाबला किया और यकीनन आप ही वो उज़मा हैं जिसको स्ट्रॉन्ग उज़मा कहा जाएगा। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की जानिब से कोई अवार्ड किसी को मिलेगा तो मैं समझता हूँ वो आपको मिलना चाहिए और आप भी उसकी हकदार हैं। मुझे अवार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे को अपनी वाह वाह करवाने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये ज़िंदगी है। जी, आपने गोद में एक बच्चा उठाया हुआ है, एक खानदान पूरा आपके पुष्ट पर है, पुष्ट पर है, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम मुझे किसी की ज़रूरत थी, कोई मेरे साथ होती या मेरा साथ देता, लेकिन मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा है। एक खानदान है, 2 भाई हैं पीछे, एक छोटी बहन है, इसने भी कुछ भी नहीं देखा, भाइयों ने कुछ भी नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और उनके ऊपर इतनी मुसीबतें टूट पड़ी, अपना घर भी नहीं रहा, किराए की छत पे आ गए, पार्क में बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लोग देखते थे, हंसते थे, यार ये इधर बैठे, अपना पीछे पूरा खानदान था, वहाँ जा नहीं सकते थे,
लोग क्या कहेंगे, हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। अबे लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों को छोड़े। उसके बाद मैंने स्वीपर की जॉब की, जो कि सारी दुनिया को स्टोरी पता है। स्वीपर की जॉब की, लोगों के वॉशरूम साफ़ किए, और पढ़ाई को अपना जो है ना वो एक मंजिल यानी कि तयन कर लिया कि मेरी मंजिल कोई नहीं है, लेकिन रास्ते पे मैंने चलना है, मंजिल खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो रास्ते के ऊपर चलते चलते मैंने फिर जो है ना वो मंजिल मुझे नज़र आना इसलिए शुरू हुई जब मैंने मैट्रिक किया। तो उस वक्त मैंने देखा कि मुझे ना एक मंजिल की छोटी सी किरण नज़र आई है कि मुझे लगता है कि अब मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह हम ये जंग जीत जाएंगे। वाह वाह। मुझे अब किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, अपनी जंग खुद लड़नी। मैंने कोई वाह वाला नहीं किया, कोई किसी के आगे रोने नहीं रोए, किसी को जाके कुछ बताया नहीं, बस मेहनत की दिन रात, सुबह से शाम तक नौकरी, रात पूरी नौकरी, पढ़ाई। उसके बाद करते 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 जो है वो मैं मैट्रिक किया, इंटर किया, बीकॉम में मैं पहुंच गई। यानी कि ज़िंदगी के 6 साल मैंने उस शख्स के बगैर गुजार दिए, और उसके अपने बेटे को और उसके बेटे को सामने रखते हुए, ये बच्चा कल को बड़ा होगा उसको देखते हुए वो आपको छोड़ के चला गया, आपका घर भी खा गया, आपके जेवरात खा गया, और आपके अब्बू उसकी वजह से जेल में भी रहे, क्योंकि यही तो स्टोरी है जी। 15 दिन एक औरत का, एक बेटी का बाप उसकी वजह से, जाहिर है कि लोग तो ये कहेंगे ना उसकी वजह से, क्योंकि शौहर उसकी वजह से जेल में रहे, तो उस बेटी पर क्या गुजरती होगी। और फिर जब उसको पता है कि भाई यही मेरा पर्दा था, इसने मेरा पर्दा ही खींच लिया मेरे सर से, इसने मुझको बरहना कर दिया, इसने मेरे सर पर चादर नहीं रखी, मेरे पाँव तले जूता खींच लिया, मैं माशरे को कैसे फेस करूंगी। मेरा बाप नहीं रहा और मेरा घर बेच गया, मेरे जेवरात बेच गया, तो क्या मतलब ऐसे मर्दों से कैसे बचा जाए। यकीन मानिए कि मर्दों को तो मैं एक ही ये यहाँ पे मैसेज भी दूंगी, खुदारा एक औरत आपका हाथ पकड़ के पूरी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो जाती है, वो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करती, ठीक है, तो उसके साथ किसी और के साथ ऐसा मत कीजिएगा। आपने छोड़ के जाना है, उसको इज्जत से ऐसा तरीके से तलाक दे दें और उससे अलग हो जाए, ना तो उसको जलील करें, उसके घर वालों को जलील करें। मेरे वाला साहब जब जेल में गए, ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने जेल, हमें पता ही नहीं थाने, कचहरी और जेल का, और यकीन मानिए हमने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया। 15 दिन मेरे बुक किस कद में जेल के अंदर रहे, और जिस दिन उनको बाहर ले गए तो जज ने पूछा कि इनको क्यों रखा गया जेल में। तो जब पूछा गया तो जिनके ये मामलात थे जो थे, तो जज ने भी अपना सिर पकड़ लिया कि ऐसे बेगुनाह बंदे को आपने जेल में रखा जिसको दुनिया का पता नहीं। और मैं आज भी रोती, पता नहीं कितने बाप, कितने ऐसे भाई बेचारे जेल में बेगुनाह सड़ रहे हैं। मेरे बाप तो सिर्फ 15 दिन रहे। मैं खता का माजर चाहता नाज़रीन मोहतरम, बैकग्राउंड यही था कि जो इनके पहले खावन थे, अब ज़ाहिर है वो दुनिया में नहीं है, पता नहीं है, शायद है, ज़ाहिर है ये भी इंकिशाफ इन्हीं से अभी करेंगे। अच्छा, वो बैकग्राउंड ये था नाज़रीन मोहतरम के जो इनके खावन थे, इनका घर भी ले लिया, इनके जेवरात भी ले लिए धोखे से। ज़ाहिर है ये तो मोहब्बत करती थी ना, और वफादार बीवी का तो यही शार होता है कि वो खावन आपके गिर्द अपनी बाहें फैला लेती है और मोहब्बत देती है और उसी को अपना घर बार समझती है। तो इन्होंने उन पर यकीन किया, जो कि इनका बनता भी था, यकीन करके अपना घर भी दे दिया, कागजात दे दिए, जेवरात दे दिए, लेकिन उसने ज़ाहिर है कि इनको धोखा दिया, और ना सिर्फ इनका घर, ना सिर्फ इनके जेवरात, बल्कि और बहुत सारी औरतों के जेवरात और घर बेचकर इनके अब्बू पर इल्ज़ाम लगा दिए, और उसी ज़िमन में ज़ाहिर है कि उनको जेल में रखा गया। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि यहाँ तक तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि जब आपके वालिद साहब जेल में, फिर आपको खबर पहुंची कि उसका इंतकाल हो गया रोड एक्सीडेंट में? लोगों ने कहा कि उसका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरा दिल आज भी नहीं मानता। अच्छा। वो इसलिए कि ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते, ऐसे लोग इतनी जल्दी थोड़ी वो फौरन मर जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो आपकी नज़र से ओझल होने के लिए कोई खबर पहुंचा दी गई हो आप तक? बिल्कुल। तो उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि कभी फिर ज़िंदगी में राब्ता नहीं हुआ ना, हमने कभी सोचा है। यानी उसने तलाक आपको दे दी थी? तलाक नहीं दी थी, वो तो वैसे ही चले गए ना। तो फिर खुला, अदालत से खुला लिया, बिल्कुल से अदालत से खुला लिया। फिर मेरा दोबारा निकाह होगा, वो भी आप सबको पता है कि निकाह हुआ, वो मुझसे छोटे हैं। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी थी, आपने घर वालों से कहा कि मैं एक ज़ाहिर है कि ऐसा शौहर चाहती हूँ तो मेरे बच्चों को देख सके, मैं ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकती, इसमें कहाँ तक आपकी रज़ामंदी? नहीं, मैं तो चाहती ही नहीं थी ज़िंदगी में शादी। अच्छा, मैं नहीं चाहती थी। मैं आज भी, मेरे वालिदैन को पता है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा शादी करूँ, लेकिन फिर मेरी शादी की गई
اور مجھے جھکنا پڑا والدین کے آگے, ظاہر ماننی پڑی. اور یہ 6 سال چھوٹے تھے آپ سے؟ مجھ سے 6-7 سال. تو وہ کیسے مان کیسے گئے وہ ظاہر ہے کہ یہ میرے ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, جو کہ کرتے بھی ہیں. تو یہ مان گئے اس وقت, شاید اس وقت انہوں نے میرے سے ترس کھایا, جو بھی ہے ایسے بھی, لیکن انہوں نے مجھے عزت دی, میرے سے نکاح کیا, میرے بیٹے کو اپنایا, ٹھیک ہے, اور میری بات بھی مانی. یعنی ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا نا, ایک سا نہیں ہوتا. ہاں یہ پتہ, یہ بھی تو ایک میسج ہے نا, 5 انگلیاں ہے نا, بالکل ایگزامپل ہے. بالکل. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے, انہوں نے مجھے پڑھنے دیا. میں BCom پارٹ 2 میں تھی جب ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا. تو اس دن بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے فزیکل ریلیشن قائم ہی نہیں کیے تھے جی. میں نے BCom پارٹ 2 کمپلیٹ کیا, اس کے بعد جا کے واہ 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 واہ, پھر اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. واہ 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 واہ. تو ہم دونوں نے مل کے, میں نے کہا میں آپ کی بیگم ہوں, تو ساری زندگی ظاہر میاں بھی ساری زندگی ملنا ہے, سب کچھ یہی ہے, لیکن اگر آپ کچھ مہینے مجھے دے دیں تو میں اپنا BCom پارٹ 2 کمپلیٹ کر لوں. ارے واہ واہ واہ. انہوں نے میری بات مانی, حالانکہ وہ ان میرڈ لڑکا تھا. ہاں 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 ہاں, بڑی بہترین مثال ہے, بہترین مثال ہے, بہترین مثال. یعنی مرد ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ کے والد صاحب بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جی. واہ 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 واہ. تو انہوں نے جناب مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کیے, پھر BCom پارٹ 2 کمپلیٹ ہو گیا, پھر اللہ نے مجھے بیٹی دی ان میں سے, پھر میں نے 6 ماہ کی بریک لی, اس کے بعد پھر میں نے MBA میں ایڈمیشن لی. تو پھر میں نے MBA کیا بڑے آسان طریقے سے. یعنی اب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ زندگی واپس ڈگر پر آ رہی ہے؟ جی جی. اور قسمت مہربان ہو گئی ہے, رب کی مہربانیاں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی کچھ ہونے والا تھا. ہاں, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ اللہ کی اب رحمت ہو گئی ہے, اللہ نے اپنا کرم اور رحم کر دیا ہے, میرے پہ رحمتیں برسنی, کیونکہ ایک اچھا شوہر مل گیا, ٹھیک ہے, جو میری بات مانتا ہے, جو کیا کہتے ہیں میری عزت کرتا ہے, قدر میں ان سے بڑی بھی ہوں, تو پھر بھی ایک بچے کی ماں بھی ہوں, وہ ان میرڈ ہے, تو اس سے اور کیا چاہیے مجھے. لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ اچانک سے شادی کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد بیٹی 6 ماہ کی گود میں تھی, تو ان کو پیرالائز ہیمریج ہو, وہ بھی بڑی تکلیف ہوئی. تو وہ بھی ایک لمحہ تھا زندگی میں جو آنا تھا, اس سے بڑا پھر میں ٹوٹ گئی. تو یہ ہوا کہ میں نے کہا نہیں, اب میری زندگی ختم ہو گئی. تو والد کا دکھ میں نے سہ لیا, اپنا دکھ سہ لیا, اپنے والدین کا, اپنی بہن بھائیوں کی محرومیت, سب کچھ ظاہر ہے. جب دوبارہ ان کو اٹیک ہوا تو میں نے کہا شاید میں ہی منحوس ہوں, شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے کہ میرا گھر نہیں بس سکتا, میرا گھر کبھی بن ہی نہیں سکتا. اب پہلے تو میرے ساتھ ایک جان تھی, اب میرے ساتھ میری بیٹی کی بھی جان جڑ گئی. تو میں نے پھر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور اللہ کو کہا, میں نے کہا یا اللہ کہ آپ ان کو بچا لیجئے. میں اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی, اپنی 6 ماہ کی بچی کے ہاتھ اٹھائے, اپنے بیٹے کے ہاتھ اٹھائے, ہر گلی جاتے لڑکے لڑکی عورت مرد سے دعا منگوائی کہ یا اللہ میرے شوہر کو بچا لیجئے, میں دوبارہ میری قسمت میں دوبارہ بیوہ ہونا مت لکھیے. تو اللہ نے کرم کیا, تقریباً 21 دن کے بعد وہ کومے سے واپس آ گئے, اور الحمدللہ اللہ نے کرم کیا. خیر ان کی جان تو بچ گئی, لیکن وہ بالکل ڈیڈ ہو گئے, بول نہیں سکتے تھے, صحیح کھا نہیں سکتے تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو پھر ان کو بیڈ پہ رہے وہ 1.5 سال, جو بھی ہیں واش روم وغیرہ سارا میں نے دیکھا, ان کا سنبھالا. ان کے والدین نے بھی بڑا ساتھ دیا, میں نے بھی ان کو بڑا سنبھالا. کئی دفعہ ان کو میں بڑی مشکل سے واش روم کرواتی تھی, میں لاتی خود اپنے ہاتھوں سے. ادھر MBA کی کلاسز تھی, آپ کو پتہ ہے MBA کتنا ٹف ہوتا ہے, اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے, اور بچی چھوٹی 6 ماہ کی. جب بھی کبھی میں ادھر میری کلاس ہو رہی ہوتی, مجھے یہی تھا یار میری بچی کیا کر رہی ہوگی, میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا, اس نے پتہ نہیں روٹی کھائی یا نہیں کھائی, اس نے دودھ پیا کہ نہیں پایا, زبان نے دوائی کھائی کہ نہیں. تو یہی اسی کشمکش کے اندر میری کلاس جو ہے وہ گزر جاتی تھی, مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی. مجھے گھر آ کے بڑا پڑھنا پڑتا تھا. پھر گھر آ کے عورتوں کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ عورتیں یہ سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے. گھر آ کے صبح میں 6:15 بجے کی گھر سے نکلی ہوئی, 4 بجے کی اٹھی ہوئی, 6:15 بجے گھر سے نکلی ہوئی, شام میں 5 ساڑھے 5 گھر پہنچ رہی ہوں, اور آ کے اپنی بیٹی کو فیڈ کرا رہی ہوں اپنا, اور پھر میڈیکل سٹور پہ جا رہی ہوں, اور رات 1 بجے تک میڈیکل سٹور پہ کھڑی ہوئی ہوں, ایک ٹانگ پہ اپنا میڈیکل سٹور چلا رہی ہوں, جو ان کے ساتھ مل کے میں نے بنایا تھا, کیونکہ اور کوئی سورس آف انکم ہی نہیں تھا. جی بالکل. تو آدھا گھنٹہ پیدل چلتی تھی, گھنٹہ وینز میں سفر کرتی تھی. کوئی کسی کی سپورٹ نہیں ہے, فیملی سپورٹ نہیں ہے, سوسائٹی کی کیا مثال ہے, کچھ بھی نہیں.
अकेली हूँ मैं। और जब मैं रात को आती थी ना तो मैं अक्सर देखती थी तो मेरी बेटी 6 माह की बेचारी कभी बेड से उसकी टांगें नीचे गिरी होती थी, कभी वो नीचे गिरी होती थी, कभी मेरा बेटा किधर को सोया होता था, इस तरह मैं देखती थी तो मैं बस कहती थी या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस हाल में भी रखा है। और बुक्स लेके बैठ जाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको ज़िंदगी बख्शी। आज भी वो वक्त याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो अल्लाह आपको समझ। और मुझसे आप मेरी बताया बहन नहीं है, जा रहा। बड़ी बहन नहीं बताया जाते अपने जो बहन। बात होते हैं ना वो नहीं बता सकते। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप स्ट्रॉन्ग उज़मा हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहें। तो उज़मा जी मुझे ये बताइए, मैं माज़रत चाह रहा हूँ खता करामी की। अच्छा ज़ाहिर है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी अल्लाह ने उनको दोबारा सेहत भी दी, तो अभी फिर आपको उनकी दूसरी शादी करने का ख्याल कैसे आया, या उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं किसी औरत को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ, हलाल रिश्ते में आ जाऊँ, या आपने कोई लड़की उनके लिए बाकायदा देखी तो दूसरी शादी? जाहिर है कि कोई औरत नहीं चाहती कि भाई मेरे सर पे कोई दूसरी खातून आए, कोई दूसरी औरत आए। ये एक्चुअली हुआ क्या, ये मुझे बताइए। बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोई भी औरत को पसंद नहीं कर रखा था, मुझसे मोहब्बत करते हैं और करते थे और करते भी रहेंगे। मैं भी उनसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ इंशाअल्लाह। उनसे। देखें उन्होंने मेरे भी ज़िंदगी में एक एहसान किया। मैं मैरिड थी, बच्चे की माँ थी, उन्होंने मुझसे निकाह किया, एक एग्जाम्पल सेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुभान अल्लाह, ठीक है पूरा किया। तो मेरे दिल में मुझे अंदर से आवाज़ आती थी डेली, अच्छा कसम से मैं ये आज आपके प्लेटफॉर्म से बता रही अरे। हूँ कि मेरे दिल से डेली मुझे ये आवाज़ आती थी कि ये अच्छा नहीं है उनके साथ, ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ यार, मैं बड़ी हूँ उनसे, मैरिड हूँ, उनकी जैसे चाउंस होते हैं ना, शगन होते हैं, ज़िंदगी की खुशी होती है, उनकी शादी ऐसी होनी चाहिए। ये मेरे दिल से आवाज़ आती थी। मैं उसके वालिदैन की भी ख्वाहिश है कि हमारे बेटे की भी इस तरह शादी होती, तो मैं उसको कहती थी तुम ना दूसरी शादी कर लो। ये करते करते मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हो गई, मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ, ना मैं उठ सकती थी ना बैठ सकती थी ना। यानी इसको जोड़ों का जोड़ों की तकलीफ, ये जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस और गैंठिया इसको कहते हैं। अभी देखे मैंने अपनी टांग फौरन चेंज की तो दर्द ज़्यादा शुरू हो गई, तो मैं इनको सर्वाइव नहीं इनके साथ कर पा रही थी। मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी जाहिर है मैं ठीक है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर मर्द बाहर जाके कोई ज़नाकारी इस तरह करें तो उससे बेहतर है कि वो निकाह करें। वाह वाह वाह। तो इसमें अगर मैं खुद ही उसका साथ ना दूँ तो फिर कौन? मैंने उनको, उन्होंने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, मैंने उनको 4 साल मनाया। अच्छा, ये 4 साल लगे मनाने में। तो पहले मुझे यही था कि शायद है ना वफादार मर्द। 4 साल मैंने उनको मनाया, तो पहले मुझे यही लगा कि शायद मैं हाँ ठीक है। जिस दिन वो मान गए उस दिन फिर मैं बेईमान भी हो गई थोड़ा सा। जब वो मान गए तो जब रिश्ता देख लिया, अरे तो क्यों मान गया? तो मान गए तो उसके बाद मैंने उनकी कज़न, उनके चाचू की बेटी। अच्छा ये रिश्ता आपने बकायदा खुद देखा? मैंने खुद देखा और मनाया भी आपने खुद उनके चचा की बेटी को? और चचा की बेटी की बहन को मनाया, उन्होंने फिर उसको मनाया। तो जब ये शादी हो, जिस दिन मंगनी होगी, मैं बड़ी धूमधाम से मैंने कहा ठीक। जब मैंने उनकी बरी खरीदी खुद जाके, तो जिस भी दुकान पे मैं जाती थी तो लोग कहते थे पता नहीं अपने भाई की खरीदने आए या, तो जब मैं कहती थी ना मैं अपने शोर की बरी बना रही, अरे तो वहाँ पे लोग, वो दुकानदार देखना भी शुरू हो जाती थी क्या कह रही हैं आप। तो मैंने उसकी बरी अपने हाथों से, इवन की दुल्हन की हर चीज़, यार आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो फिर मैंने स्ट्रॉन्ग हैं। दुल्हन को मैंने शादी से 3-4 दिन पहले बुलवाया घर में, ठीक है। अपने हस्बैंड से तो नहीं मिलवाया, वैसे अपने पास मिलवाया। उसको लेके गई बाज़ार, उसकी पसंद के उसको जूते दिलाए, जो जो उसको चीज़ें पसंद थी उसको दिलाई, तो फिर उसको घर भेजा। तो उसका पहली बार जब मैंने हाथ पकड़ा ना, तो पता नहीं क्या फीलिंग्स आई अंदर से, बार मैं खामोश रही, मैंने इग्नोर कर दिया। जिस दिन मेहंदी थी तो मैं उसको मेहंदी लगाने गई, दुल्हन को, अपने हस्बैंड को मैंने खुद मेहंदी लगाई और बड़ा हंसते हंसते लगा दी। उस टाइम मेरे अंदर कुछ नहीं था, यानी कि मैंने उसको मेहंदी लगा दी, बड़ा वो डांस भी कर लिया, सारा जो भी था। फिर मैं उसको मेहंदी लगाने गई तो उसको भी मेहंदी लगा के वापस आ गई। अच्छा जिस दिन मैं बारात लेके गई ना, तो उस दिन मैं ना बेईमान होगी, मैंने कहा मैंने आपकी बारात के साथ नहीं जाना, मैं आपको बैग तैयार कर देती हूँ, आप खुद जाएँ। तो उसने ये शर्त रख दी कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा, मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊँगा, आपके बगैर मैं बारात नहीं लेके जाऊँगा। मेरा हाथ पकड़ के वो बारात तो मैं उसकी ले गई,
वहाँ पे जाके ना बैठ, जब उन्होंने कहा ना कि निकाह का टाइम आ गया तो उन्होंने कहा कि आप साथ चले दुल्हन के पास निकाह कराने, तो मेरा अंदर से दिल बदल गया। मैंने कहा अल्लाह करे ये ना कर दे, होता है ना फिल्मी सीन कि ये ना बोल दे यार, नहीं ये मैंने क्या किया। मेरे अंदर से एक दफ़ा मैं हिल गई, मुझे चीज़ ने झंझोड़ा। तो जब मैं गई तो मैंने देखा तो वो दुल्हन बनी सजी हुई बैठी हुई थी, तो कारी साहब भी साथ गए। तो मैंने कहा ये कभी भी ना हाँ नहीं बोलेगी, ये ना ही बोलेगी, ऐसे थोड़ी होता है कि ये निकाह कर लेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि वहाँ पे मैं ये हूँ। तो जब कारी साहब पास बैठे उन्होंने वो पढ़ाया और उन्होंने पूछा कि आपको अब्दुल जब्बार और ये वो आपको कबूल है, तो वो खामोश रही। तो मेरे दिल में ना एक ना ऐसे हौसला हो गया, फिल्मेटिक सीन चल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं बोलेगी, ये खामोश है तो ये कहाँ बोल सकती। तो कारी साहब ने दोबारा पूछा, तो मैं उसके पास ही यूँ बैठी थी, तो उसने ना ऐसे मेरे साथ ही बिल्कुल लग के बैठी थी, उसने कह दिया कबूल है। तो जब उसने ये कहा तो मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। तो फिर मैंने कहा नहीं एक बार ऐसे 2 बार थोड़ी बोलेगी, ये ना बोले। उसने दूसरी बार बोल दिया। जब उसने तीसरी बार बोला तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल, ऐसे जैसे आंखों के आगे अंधेरा नहीं छा गया। तो मैंने फिर उसका हाथ पकड़ के साइन करवाए खुद अपने हाथों से। तो उसके बाद फिर मैं उसको लेके स्टेज पे आई, और स्टेज पे वो इंटरव्यू वाले इतने जमा हो गई है वो, लेकिन मैं बहुत हंस रही थी, लेकिन उसके पीछे जो एक शोर था मेरे दिल में वो सिर्फ मेरा अंदर ही जान रहा था, दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। यानी औरत कुर्बानी भी दे तो कुर्बानी की तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। नाज़रीन मोहतरम, मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि औरत अगर कुर्बानी हंस के दे रही है और मुस्कुरा के कुर्बानी दे रही है और अपना आप कुर्बान कर रही है, तो कोई दर्द वाला ही उसकी तकलीफ जान सकेगा। बज़ाहिर माशरा तो समझेगा कि मुस्कुरा रही है भाई, ये खुश है, मगर जो अंदर तकलीफ होती है, दर्द होता है, कोई औरत ही पहचान सकती है। तो शायद उस वक्त औरतों ने मेरे अंदर की जो गमगीन वो दिल मेरा था उसको जाना हो। मेरी आंखों की रोशनी तो ये बता रही थी कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी उदासी कोई नहीं देख रहा, शायद वो कोई देख लेता। तो उस वक्त फिर मैं उनको लेके ससुराल चले गए। तो फिर मेरा यही था कि ये ससुराल में रहेंगे पहला दिन ना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर कहा नहीं हम अपने घर चलते हैं। तो वहाँ से फिर मैं उनको अपने घर लेके आई। कमरा भी खुद सजाया आपने? खुद सजाया। हमारे तो शब रूसी में जो ज़ाहिर कमरा सजाया जाता है खुद सजा रही हैं आप? जी खुद मैंने उनको लड़कों को मैं कहा कि मैंने कहा कमरा बेड भी उनका खुद मैंने पसंद किया। अच्छा। तो लाके सजा दिया। खर्चा भी आप अल्टीमेटली कर रहे हैं? मैंने किया सारा। तो फिर मैं उसको लेके गई ऊपर। जब आए नीचे बैठे, थोड़ा मेरा भाई आया उस दिन ना, तो वो इंटरव्यू के लिए आया। मैं जो खैर मेरे भाई ने मुझे फील नहीं कराया, वो परेशान तो था, चला गया। फिर मैं उसको ऊपर छोड़ने जब गई ना, उनका ऊपर रूम था, मेरा नीचे था। पहले वो मेरा रूम हुआ करता था। तो मैं जब छोड़ने गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना मेरा हाथ पकड़ लिया उसके सामने, और फिर उसने उसको कहा कि उस्मा ने बहुत बढ़िया कुर्बानी दे दी है। वो फिर रो पड़ा, खुद भी रो पड़ा था। फिर मैं बहुत रोई तो वो भी रो पड़ी, कहती बाजी क्या हुआ। मैंने कहा बस मैं इनका हाथ आपके हाथ में दे रही हूँ, प्लीज़ आपकी तरफ से मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए। और मैं फिर उनको छोड़ के कमरे में नीचे आ गई। तो मैंने आके दरवाज़ा बंद किया। मेरे बच्चे सो चुके थे और मैंने लाइट ऑफ कर दी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मेरे जिस्म में जान नहीं थी, और जैसे एक मुर्दा होता है जिस्म, तो होती फीलिंग्स थी उस वक्त की। खैर मैंने बर्दाश्त जो भी थी, एक सास का भी मैंने रोल निभाया, समझ लिया। सुबह मैंने उठ को जाके उनको सारा कुछ जो भी मामला होते वो सारे किए। फिर उनको वलीमे के लिए तैयार किया। फिर वलीमे के स्टेज पे ले गई, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजाए हुए, और आज तक मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही सजी हुई है। अरे 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 अरे, और ये ता क़यामत और कब्र में जाने तक सजी। अरे अरे अरे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दे दिया, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो वो खुश रहे और मेरी भी खुशियाँ उसको लग जाएं, मेरी दिल से। अरे अरे अरे, तो वो खुश रहे, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। अगर कभी वो उसको डांट भी देता है ना, तो मैं पड़ जाती हूँ अपने हस्बैंड को, सास बन जाती है, सास बन जाती है। खबरदार इसको अगर आपने डांटा तो। उस्मा जी मैं तो यही कहूँगा कि आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। आप ऑस्कर अवार्ड के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। यहाँ पता नहीं किन किन औरतों को तमगा इम्तियाज़ दे दिया जाता है भाई। असल में आप उन ख़वातीन को तलाश करें, बल्कि तलाश का करना सामने बैठी हुई भाई। आप ऐसी ख़वातीन को देखें जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ दे चुकी, तमाम कुर्बानियाँ दे चुकी, सब कुछ वार दिया, अपना जीवन हार दिया, सब कुछ वार दिया, अपना जीवन हार दिया। ये होती है असल औरत, यही है औरत की हकीकत। और मर्द वो होता है, औरत ही उस मर्द को पैदा करती है,
और वो औरत ही की हड्डियों से निकल के औरत ही की हड्डियों को खा जाता है और फिर औरत ही पर भौंकता है, औरत ही को काटता है। ऐसे मर्द हैं, मगर ऐसे मर्द भी हैं जो उनके वालिद साहब जैसे हैं, ऐसे मर्द भी हैं जो अब्दुल जब्बार जैसे हैं, और ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी ज़ाहिर है कि बीवियों का पर्दा सलामत रखते हैं और अपनी बीवियों पर पर्दा बन जाते हैं, उन पर छाया करते हैं। ऐसे मर्द भी हैं, मगर ऐसे मर्द भी होते हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया, जिन्होंने धोखा दही से ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी उजाड़ दी बल्कि इनके घर वालों की ज़िंदगी उजाड़ के रख दिया सब कुछ। लेकिन ये अज़्म इस्तिक़लाल की पैकर अपने जज्बे में ज़ाहिर है कि जवानी रखते हुए, बल्कि मैंने इनका तारीफ़ इस तरीके से कराया कि इनके जज्बे और अज़्म इस्तिक़लाल में है जवानी, उज़्मा गिलानी। एक्चुअली ये उज़्मा गिलानी है। अच्छा, मैं ज़ाहिर है कि नाज़रीन मोहतरम आपसे भी मुखातिब हूँ। उज़्मा जी की स्टोरी आपने सुन ली। ये लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं, घर घर जाकर, हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। भाई कोई परेशानी है तो मुझको बताओ, कोई मसाइल है तो मुझसे शेयर करो ना, मैं तुम्हारी आवाज़ बनती हूँ। क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाज़ होती है वो अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? वो अपनी आवाज़ कब बनेगी भाई? इनको बहुत ज़ाहिर इक़साम के तकालीफ है, इनको एक तकलीफ है जिनको जॉइंट्स पेन कहा जाता है, जोड़ों का दर्द कहा जाता है, और ये इस वक्त बेइंतहा तकलीफ का शिकार है, बेइंतहा दर्द का शिकार है। अभी भी ज़ाहिर है कि इनको वो तकलीफ में थी। अब बहुत रिक्वेस्ट के साथ इनको ज़ाहिर है कि इनकी स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है। अब हमारी बड़ी बहन है, इन्होंने बहुत मोहब्बत से नवाजा हमको, मगर नाज़रीन मोहतरम ये अपना दर्द आपको नहीं बतलाती। और जो यूट्यूब की इनकी इनकम है ये उसका 70% ऐसे घरानों को देती है जो खा खा नहीं सकते। हर महीने लोगों के यहाँ राशन जा रहे हैं। ये अगर चाहे तो यूट्यूब की इनकम से अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट्स का बहुत महंगा इलाज है, मगर इन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया। बल्कि हाथ क्या फैलाना, ये तो अपनी इनकम भी लोगों पर वार रही है। जी जी, मैं इनकी इजाज़त से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। मैं तमाम देखने वालों से मुखातिब हूँ कि खुदारा ये लोगों के हक में आवाज़ बुलंद करती हैं, मैं इनकी आवाज़ बन रहा हूँ, इनका इलाज कराइए, खुदा का वास्ता। आप इनसे राबिता कर सकते हैं। शी इज़ अ वेल नोन पर्सन इन पाकिस्तान। आप इनसे राबिता कर सकते हैं किसी भी सूरत में, इनके इंस्टाग्राम पर, इनके नंबर पर राबिता कर सकते हैं। आप इनका दर्द जानें और दर्द को महसूस करें, आप खुदारा इनका इलाज कराइए। ये इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है, ये खुद नहीं कहेंगी। ये वो औरत है जो हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी, और तकलीफों का सामना करना इस औरत को आता है। इसको मालूम है कि मैं तकलीफ का सामना हिमालय चट्टान की तरह किस तरीके से करूंगी, और ये कर रही है। एक मजबूत चट्टान की तरह हर तकलीफ और अलम को बर्दाश्त कर रही है, मगर कभी भी हर्फ शिकवा जबान पर नहीं लाती। मैंने अभी रिसेंटली एक भाई बहन का जिगर ट्रांसप्लांट कराया है। 35 लाख रुपए मैंने 2 दिन में इकट्ठे किए। मैंने RO प्लांट लगाया। फ्लड के दिनों में जाके दरियाए सिंध में खुद उतरी, इतने पानी के अंदर, सांप बिच्छू जानवर मरे हुए मेरे सामने थे, मैं बीमार हो गई। RO प्लांट लगाया मैंने, लोगों को इस टाइम तक 27 घर बना के दिए हैं। अरे वाह फ्लड वाह के वाह। 20 उधर और 7 इधर डिफरेंट इलाकों में। मैंने फिर उसके बाद 5 सिलाई स्कूल बनाए हैं, वाह वाह जहाँ पे वाह। औरतें, बेवा औरतें, यतीम बच्चियाँ आके जो है स्ट्रॉन्ग उस्मा फाउंडेशन के थ्रू यानी कि जो है ना सिलाई सीख रही हैं। वाह 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 वाह। इतनी औरतों को मैंने एम्पावर किया है। वाह, कई वाह। कॉल गर्ल को मैंने सिलाई सिखा के अपने घरों में उनको बिठा दिया। अरे सबके वाह साथ। वाह वाह वाह, और उसके- जन्नत खरीद लिया आपने। उसके बाद मैंने असद अब्बास भाई के लिए आवाज बुलंद की। बहुत बहुत बहुत। मैं नाज़रीन होता हूँ शेयर करने वाला हूँ ज़ाहिर है याद दिलाने के लिए। असद अब्बास भाई ज़ाहिर है कि हम भी गाहे गाहे उनकी आवाज़ बनते रहे, कोशिश की, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से। ज़ाहिर है कि वो कैंपेन इन्होंने शुरू की पाकिस्तान में भाई, सबने बाद में शुरू की, इन्होंने सबसे पहले। मैं क्रेडिट दूंगा इनको कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा वो खातून है कि असद अब्बास भाई जो मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। इन्होंने उनकी आवाज़ बुलंद की, उनकी घर वालों की आवाज़ बनी, और ज़ाहिर है कि ना सिर्फ आवाज़ बनी बल्कि हम जैसे लोगों में भी शऊर बेदार किया कि भाई आप उनकी आवाज़ बने। जी, मैंने बड़ा कुछ किया, यानी कि आप यकीन मानिए कई राशन, कई लोगों के रोज़गार लगाए, कई लोगों के मैंने छोटे छोटे से रोज़गार लगा के उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। वाह, वाह। रिसेंटली एक क्रिश्चियन से फैमिली मुस्लिम हुई है, वो भी मेरे पास, अब उनको छोटा सा बिजनेस कोई करके देने लगे। वाह, वाह। अपने लिए मैंने आज तक कुछ नहीं लिया। मैं गाड़ी ले सकती थी, वाह, वाह। मैं घर ले सकती थी, हाँ, हाँ। सब कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे आपने तो इलाज नहीं कराया। इलाज नहीं कराया। मैं ये मेरा स्टक हो गया बाजू, तो मैं डॉक्टर के पास गई, कहते हैं अब आप ऐसे करें स्टोवा पे आ जाएं, आपका हम इलाज कर दें। 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन बता रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई इतना
मैं कहाँ से इलाज कराऊं? अल्लाह आपको सेहत दे। बस मैं दुआओं की दरख्वास्त करूंगी अल्लाह आपको और सलामत कहूंगी कि अगर आप कुछ चाहते हैं करना तो मेरी फाउंडेशन से मिलके करें, यानी कि लोगों को एम्पावर करें। आप इनके लिए भी कुछ करें। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनके लिए भी ये नहीं कहेंगी, ये नहीं कहेंगे आप इनके लिए कुछ करें खुदारा। ये जाहिर है कि इनका अगर इलाज हो जाए तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन जाता रहे, अगर इनका इलाज हो जाए तो खुदारा ये तो नहीं कहेंगे, मगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जाहिर है कि डॉक्टर अहमद नज़ीर इस वक्त आपसे मुखातिब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इनके इलाज के लिए सोचें, इनसे राबिता करें, इनसे पूछें इनको तकलीफ है, ये नहीं बताती। मैं आखिर पर उस्मा जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे माशरे की औरतों को आप कोई पैगाम देना चाहें, ऐसी औरतों को जो बेजा अपने मर्दों पर इल्जाम लगाती हैं जी, बिला वजह। मर्द वफादार होते हैं मगर बिला वजह का शक उनका घर बर्बाद कर देता है, और ऐसे मर्द जो औरत को औरत नहीं समझते, दोनों के लिए कोई पैगाम? दोनों के लिए मैसेज ये है कि देखें, औरत जो मर्द के लिए ये पैगाम है कि औरत आपको मुफ्त में एक नौकर मिली, हालांकि सारी ज़िंदगी वो इतनी पागल होती है, वो समझती है ये मेरा घर है, लेकिन उसका घर कोई नहीं होता। वो अपने वालिदैन के घर पैदा होती है, ससुराल में चली जाती है, ससुराल वालों को संभालती है, फिर वो समझती है ये मेरा घर नहीं, फिर वो अपने बच्चों को पैदा करती है, फिर पालती है, बेटा कल को बड़ा हो जाता है, बहुएं आ जाती हैं, घर उनका हो जाता है। तो औरत का कोई घर नहीं होता, सिर्फ 3 लफ्ज़ों की वो मोहताज होती है। 50 साल गुजारने के बाद भी मर्द 3 लफ्ज़ बोले तो औरत का कोई घर नहीं। तो औरत आपकी देखे बेहतरीन साथी है, वो आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, उसकी कदर करें, बहुत खूबसूरत है। उसको यानी कि अपनी औरत को होते हुए दूसरी औरतों की तरफ देखना, मायल होना, अपनी सेक्रेटरी या इस तरह के, तो इस चीज़ में नहीं। आप अपनी औरत से मोहब्बत करें, पेश आए, वो सारा दिन की थकन भी भूल जाएगी, वो बच्चों को संभालना, वो सफाइयाँ करना, वो बर्तन धोना, वो कपड़े धोना, वो खाने बनाना, वो बच्चे सब कुछ भूल जाएगी, सिर्फ आपके 2 लफ्ज़ों की मोहताज होती है। तो आपके 2 प्यार के बोल अगर आपकी औरत को इतना खूबसूरत बना सकते हैं तो प्लीज़ 2 बोल बोलने में कुछ भी नहीं होता। बाहर भी तो आप इतने बोलते हैं जानू और ये वो, ऐसे। और उनके लिए भी आप कुछ भी ना लाए ना, एक आते हुए रास्ते में एक फूल लेते हैं या एक छोटी सी अब्दुल जब्बार भाई सुन लीजिए, एक चॉकलेट ले आए, उन्होंने 2 ले आनियाँ पैनियाँ तो एक चॉकलेट एक फूल ला के उनसे कहीं आपसे हसीन कोई नहीं, इसी में वो पागल हो जाएगी। और औरतों के लिए मैसेज है कि आप शक करती हैं, शक मत करें उनके मोबाइल को बिला वजह। ये वो देखिए, अगर वो बिजनेसमैन है तो उनके जो ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके साथ उनका गलत रिलेशन है। मीटिंग होती है, 100 काम होते हैं, बिजनेस के काम होते हैं। अगर वो कहीं जॉब करते हैं फिर भी वहाँ पे औरतें तो 50% मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं। अगर उनकी कोई अच्छी दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ खराब है, ठीक है? तो बिला वजह शक ना करें, बल्कि बजाय इसके के लड़ाइयाँ झगड़े, खुला कोर्ट कचहरियाँ, बच्चे डिस्टर्ब, तमाशा, इज्जत नफ्स का मजरू करना, दोनों ऐसे तरीके से बैठ के एक दूसरे को चॉकलेट खिलाएं, मिठाई खिलाएं। अगर साथ नहीं रह सकते तो अलग हो, गले लग जाए, गले लग जाए, गले लग के लैदा हो जाए, अगर लैदा ही होना। बिल्कुल सही। ये मैसेज है, शायद इस पर तनकीद हो जाए, लेकिन यही कहूँगी, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बड़ी खूबसूरत है, बस इसको ऐसे तरीके से गुजारिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुसीबतें कुछ भी नहीं होती, हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। 70% मुसीबतें हमारे ऊपर, हज़रत अली ने कहा, हमारी ज़ुबान की वजह से आती है। इस ज़ुबान को थोड़ी सी लगाम दें तो ज़िंदगी बड़ी आसान। वाह 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 उस्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके अज़्म, जुर्रत और जज्बे को सैल्यूट पेश करता हूँ। जाहिर है कि आप बहुत सारी औरतों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं और किरदार अदा कर रही हैं, बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। एक मरतबा फिर आपको सलाम पेश करता हूँ और बेहतरीन वक्त देने पर आपका जाहिर है कि मुतशक्किर हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से आप पाकिस्तानियों की आवाज़ बनती रहे। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके और इंशाल्लाह उस्मा जी को हमारे साथ आप देखते रहा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।